जी। کہ ریسرچ کو سمجھا گیا ہے کہ وہ بالکل الگ ہے تدریس سے، हाँ, हाँ, لیکن اس آپ کی جو ریسرچ ہے وہ آپ کی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ آپ ریسرچ کریں اور اس کی بنیاد پر اپنی جو تدریس ہے اس کو بہتر بنائیں، जी, تب وہ لرننگ کی طرف جائے گی۔ یہ جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی شہرت تدریس کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پڑھے ہوئے طالب علم جو ہے وہ اچھے نکلتے ہیں۔ اسی لیے آج کی موجودہ جو ایویلویشن کا نظام ہے اس میں شاید تھوڑی سی اصلاح اصلاح کرنی کی جائے۔ ضرورت ہے، یہ بہت اچھی بات کیا۔ جی ہم اس بات کو پاکستان میں محسوس کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ایک گلوبل ہے۔ جی جی، جی دوسری بات آپ کریں۔ جی دوسری بات میرے خیال میں کہ میں اپنے طلباء سے جو ان کے بولنے کی صلاحیت سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ زبان سیکھنے کے لیے ماحول بہت اہم ہے، لیکن یہاں اردو بولنے کا ایک ماحول نہیں موجود، اسی لیے مجھے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس وہ بولنے کی مشق بہت کم کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے بولنے کا اعتماد بھی کھو گیا ہے۔ اس میرے خیال میں کہ سارے چین میں ایک ایسا مسئلہ ہے، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اساتذہ کو اپنے مضامین اور پڑھانے کے طریقوں میں تبدیلی لانی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زیادہ پاکستانی یونیورسٹیز سے رابطہ کریں اور بچوں کے اسٹوڈنٹس کے تبادلوں کے پروگرامس کو فروغ دیں، اور پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو شاید 6 ماہ 1 سال کے لیے پاکستان میں سینڈ کریں تاکہ وہ وہاں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان میں نہیں جا سکیں لیکن if we have اگر ہمارے پاس جو تبادلوں کے جو ایک ریٹیل میکینزم ہے تو پھر ہم آن لائن بھی شاید 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں ایک آن لائن سیمینار وغیرہ پر اسٹوڈنٹس بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کی تبادلوں سے بچوں کے جو کمیونیکیٹس تبادلہ خیال کرنے کی صلاحیت مزید بڑھ سکتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیا جو زمانہ آ گیا ہے اس میں انٹرنیٹ اتنا دستیاب ہے اور بہت سی ویڈیوز آپ کو دستیاب ہیں اور بہت سی چیزیں دستیاب ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہیں پہ رہ۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت اہم ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ ایک حد تک اس کا مداوع یا اس کی تلافی تو کر سکتا ہے، لیکن زبان سیکھنے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، ظاہر آپ بھی استاد ہیں اور ہم بھی زبان پڑھاتے رہتے ہیں، آپ کو بھی جو غیر محسوس طور پر آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں تو لوگ اور میں اور آپ بول رہے ہیں لیکن کچھ اور لوگ بھی چینی بول رہے ہیں، تو وہ ساری آوازیں جب کان میں پڑتی ہیں تو یہ جو غیر محسوس طور پہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے یہ وہیں پر ہو سکتی ہے جہاں پر زیادہ زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس وجہ سے طالب علموں کو وہاں جا کر 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے پڑھنا وہ کہیں زیادہ مفید ہو سکتا ہے کہ آپ 1 سال صرف انٹرنیٹ سے دیکھیں۔ ہاں ہاں یہ اور بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یس اور اس تبادلے کے طریقہ کار کو آسان بنانا ہاں چاہیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں ورنہ بہت پیچیدہ ہاں وہ اس میں پروسیسنگ ہے۔ ہاں پروسیسنگ بہت اس سے ہے، پروسیجرز میں جو ہے وہ ٹائم اتنا گزرتے، اور خاص طور پہ جو طالب علم ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ فارم بھریں اور منسٹری میں جائیں اور ہم کرتے ہیں اجازت لیں اور اساتذہ کرتے ہیں، اساتذہ کو ہمارے کرنا پڑے۔ پاس زیادہ کم وقت جی ہے۔ ایسے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اچھا یہ فرمائیے کہ جو کتابیں اب ہمارے پاس اس وقت دستیاب ہیں یا جو مٹیریلز اویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم پڑھاتے ہیں جی ان کو کس حوالے سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ آج کل ہمارے جو اردو کی نصابی کتابیں ہیں سب سے پہلے بہت کم ملتی ہیں، صرف آئی تھنک لیس دین 5 اور لیس دین 10 سے کم بھی جو ٹیکسٹ بکس موجود ہیں، اور میرے خیال میں جو پڑھنے کا مواد آج کل زیادہ ہو بھی ہیں، مطلب ایکسٹینسو ریڈنگ کے لیے کچھ کتابیں آلریڈی چھپی ہوئی ہیں، لیکن جو بنیادی کتابیں ہیں۔ بنیادی کتابیں اور لیکن جو کیا مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں 4 سال کے لیے اردو سیکھتے ہیں نا، تیسرے اور چوتھے سال میں ان کی اردو کا معیار زیادہ بلند ہو گیا ہے، ایڈوانس لیول پہ یہ ایڈوانس لیول کا ہے، وہی نہ صرف زبان سیکھنے کے لیے بلکہ مطالعہ پاکستان کے لیے، کچھ گہرے مسائل پر سوچنے کے لیے، ادب کے لیے۔ جی ادب کے لیے، ایسی جو ٹیچنگ کے لیے یا سیکھنے کے لیے کچھ کتابیں بہت کم ملتی ہیں۔
इसके अलावा आई थिंक फॉर प्रैक्टिसिंग लिसनिंग और स्पीकिंग सब मटेरियल्स भी बहुत हाँ, ये जो लिसनिंग वाली आपने बात की, हम जब ज़ुबान सीखने लगते हैं तो यानी कम तवज्जो जो है वो लिसनिंग की महारत कहती जाती है। हालाँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो समात है। अगर आप अच्छा सुन सकते हैं तो आप अच्छा बोल सकते हैं। सही आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे लिसनिंग की प्रैक्टिस कर मुश्किल सकते हैं? बहुत मुश्किल नहीं, है। जैसे आपने कहा उसके लिए किताब होनी चाहिए, किताब और मटेरियल्स होने चाहिए। अब मैंने एक किताब हाँ, रखी है अच्छा, लिसनिंग के लिए। उर्दू ये 2 गुफ्त किताबें हैं। माशाअल्लाह, ये जिल्द अव्वल उर्दू गुफ्त व शनीद जिल्द अव्वल, ये मोहतरमा नसरीन की किताब है। ये गुफ्त व नशीद का मतलब है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यस टुगेदर। और ये आम तौर पर जो दरसी किताबें हैं वो लिखने और पढ़ने की महारत जो है उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं, लेकिन इन्होंने किताब लिखी है अपनी ज़रूरत के मुताबिक उर्दू गुफ्त व शनीद के हवाले से। ये इसकी जिल्द अव्वल है, वॉल्यूम 1। यस यस दिस और वॉल्यूम 2 ये है वॉल्यूम 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 1 ज़्यादातर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ सिचुएशन पर बातचीत है। ठीक है, मसलन जो अमूमी हालात हैं जिनसे आप जी, गुजरते हैं, जैसा कि आप देख सकते रोज़मर्रा बोलचाल जिसे आप कहते हाँ, हाँ, हाँ। आप हैं। जी हाँ। कैसे जो टैक्सी में सफ़र हाँ कैसे जी, करते मेरा घर हैं है या वक्त बताना या टेलीफोन करना या जी, खरीदारी करना, और मौसम, समतें और रास्ता बताना, जी, इसमें बहुत मैंने अच्छा है। कई सवालात बनाए हैं शायद आफ्टर यू लिसन टू लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ। एक मवाद सुनने के बाद मसलन एक मकालमा सुनने के बाद कोई सही जवाबात का इंतखाब करें या कुछ सवालात के जवाब लिखें या इस तरह की या डिक्टेशन। हाँ, ये भी एक छोटी कोशिश है, नहीं, नहीं छोटी नहीं ये है, सिर्फ़ एक ये स्टार्ट है। बुनियादी कोशिश है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स राइटिंग जो है, अच्छा। वो उसका इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है। अ, हमारे जो किताबें लिखने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि आला दर्जे की किताबें लिखना, अच्छा। जिनमें बहुत इंटेलेक्चुअल बात है, वो ऐसा जी है। में भी ऐसी हालत है। लेकिन तालिब इल्म के लिए बुनियादी किताब लिखना, जिससे वो सीख सके, आला किताब लिखना दानिश्वर का काम है। हाँ। लेकिन उस्ताद का काम जो है, वो तालिब इल्म के लिए किताब लिखना है। असल में इस तरह की निसाबी किताबें बच्चों स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुफ़ीद है ना? जो स्किल बेस्ड है ना असल में, हाँ, स्किल स्किल बेस्ड हैं कि जो ज़ुबान की मुख्तलिफ महारतें हैं, हर महारत को सिखाने के लिए अलग से एक किताब और मटेरियल की ज़रूरत है। तो अगर उस पे फ़ोकस किया जाएगा, मिसाल के तौर पे आप अदब पढ़ाकर किसी को समात के लिए तैयार नहीं कर सकते, उसके लेसन्स अलग हैं। इसी तरह जो बोलने की महारत है, वो पढ़ने की महारत से अलग है। उसकी एक्सरसाइज़ेज़, उसके जो मशक़ें हैं, वो अलग हैं, उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। तो हर एक पर अलग से फ़ोकस करने की ज़रूरत जी, इसी सिलसिले में भी वही मसला है कि निसाबी किताबें लिखने के लिए हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम में वो बहुत कम है। हाँ, नंबर्स बहुत कम नंबर है। दिए जाते हैं। मसलन ये 2 किताबों के लिए सिर्फ लाइक 5 नंबर्स। हाँ, इट्स सिमिलर टू जर्नल, a paper in हाँ, a common journal. ऐसे। मतलब इफ यू पब्लिश अगर आप एक लाइक एचईसीकली डी जराई Yeah. जर्नल में अपनी एक मज़मून छपवाएँ तो शायद 30 नंबर्स हासिल करेंगे। इट्स लाइक 6 टाइम्स ऑफ द बुक राइटिंग। जी, इसीलिए ज़्यादा लाइक लोग उस तरफ ही आते हैं। जी, हाँ, असातिज़ा की हौसला अफ़ज़ाई नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक करें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। पहले भी जो बात आप कर रहे हैं उसी के तसलसल में आया कि जो एवोल्यूशन का सिस्टम है हाँ, हाँ, और असातिज़ा की जो प्रमोशन का तरीक़ाकार है, हाँ, जो हाँ, इंसेंटिव जिसे हम कह रहे हैं, हाँ। वो अगर इस तरफ तवज्जो करे, तो शायद हम ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स पैदा कर सकें। और चीन में तो मुमकिन है पब्लिशर भी आपको यहाँ पे मिल जाए, जी, लेकिन पाकिस्तान में पब्लिशर का मिलना तो एक मसला है कि अच्छा, अगर आप अच्छी किताब लिखें, तो अच्छा। आपको अपने पैसों से छपवानी पड़ती है बाज़ हाँ, बात, ये भी एक मसला बहुत है। मुश्किल है इस तरह। तो चलिए ये मुश्किलात भी हुई और पिछले सफ़र भी आपने देखा, तो इस सारे की रोशनी में आप क्या फरमाते हैं कि आगे जो मुस्तकबिल है, उर्दू का मुस्तकबिल चीन में आप क्या देखते हैं? बहुत ऑप्शन है बेशक क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान उर्दू सीख रहे हैं और मेरे ख़्याल में असातिज़ा की तादाद में भी बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है तकरीबन 40 लोग बशमूल पाकिस्तानी माहिर। इसीलिए मेरे ख़्याल में हम सब लोगों की मुश्तरका कोशिशों से हमारी जो हिसाबी किताबों का जो सिस्टम है या हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं ज़रूर बेहतर होंगे और स्टूडेंट्स के जो उर्दू ज़ुबान के लेवल भी ज़्यादा बुलंद हो जाएगा और चीन और पाकिस्तान के इतनी करीबी ताल्लुकात हैं और स्टूडेंट्स को
अच्छी जॉब्स भी मिल सकती हैं, इसीलिए वहीं भी उनकी हौसला अफ़ज़ाई की पड़ रही है कि वो मेहनत से उर्दू सीखें। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफ़सील के साथ जो उर्दू का माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल है, उसके बारे में हमें आगाह किया। और खुशी इस बात की है कि यहाँ के उस्ताद उसी तवज्जो के साथ, उसी मेहनत के साथ उर्दू के बारे में पढ़ा रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि दुनिया में जो बड़ी ज़ुबानें हैं, हुँ, मसलन जैसे अंग्रेज़ी है या अब जैसे चीनी है या अरबी है, जी। ठीक है? या फ्रांसीसी को समझा जाता है कि उनको एलीट ज़ुबानें समझा जाता है, कि लोग ज़्यादातर उनकी तरफ मुतवज्जो हैं। और हम पाकिस्तान में ये समझते हैं कि हमारी ज़ुबान जो है शायद उसकी तरफ दुनिया की तवज्जो नहीं। लेकिन जब हम इस तरह के मामलात देखते हैं, लोगों के पढ़ने की रग़बत देखते हैं, बाहर की दुनिया में उर्दू का फ़रोग़ देखते हैं, और अब ये भी है कि उर्दू सिर्फ़ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। हुँ, इंडिया में बहुत से लोग जो हैं, हाँ, एक हाँ। बहुत बड़ा तबका और एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों जी, की उर्दू बोलने मशरिक़ वाली है। वस्ता में। मशरिक़ वस्ता में बहुत से लोग हैं, कनाडा में बहुत से लोग हैं, जी, जी, यूरोप में जी। बहुत से लोग हैं, जी, डायस्पोरा बहुत बड़ा है। तो इसलिए अब उर्दू जो है वो एक आलमी ज़ुबान की हैसियत रखती है। जी, तो इस वजह से उर्दू को पाकिस्तानी जोग्राफ़िये से पढ़कर भी सोचना चाहिए, और उसी के सिलसिले में ये शोबा भी यहाँ का पेशरफ़्त कर रहा है। बहुत शुक्रिया, हम दुआ करते हैं कि जल्दी-जल्दी आपकी डॉक्टरेट मुकम्मल हो।